नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम अब जो है बेसिक मैथमेटिक्स कवर करने के बाद जो क्लास 9th और क्लास 11th का चैप्टर वाइज जो है स्टडी करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम्स पर है। नंबर सिस्टम्स को लेकर के मैंने पहले ही दो बेसिक मैथमेटिक्स के अंडर वीडियोस बनाई हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं अपने जिसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है मेरी पुरानी नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2, वो जो है पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद जो है वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और जो पहले से कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक्स जानते हैं तो वो डायरेक्ट ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेशनल नंबर्स से शुरू करेंगे। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, लेट अस सी। तो रेशनल नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू यहाँ पर मतलब है क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट। ठीक है, क्यू का मतलब कोशेंट है, जो कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स is represented by the capital letter Q. Now let us see what are the rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers होते क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए the numbers जो कि P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, the numbers which are represented in the form P by Q where P and Q both are integers, यानी कि जहां P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स कोई भी, तो वो रेशनल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है, दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जैसे 5/6 -3/2 111/112, तो इस तरह के सारे जो हैं नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं नंबर केवल 2 लिख दूं या 116 लिख दूं तो ये भी रेशनल नंबर्स होंगे। क्यों रेशनल नंबर्स होंगे? क्योंकि किसी भी ये इंटीजर्स हैं, किसी भी नंबर के इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लिख दूं तो उस नंबर की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि द वैल्यू रिमेन्स सेम। सो ये वही फॉर्म है P by Q की फॉर्म। तो इसलिए एनी इंटीजर, एनी होल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर. So after learning the definition of the rational numbers, that means by definition we have learned that rational numbers are represented in P by Q form. This representation of the rational numbers in P by Q form is also known as the quotient form of the rational numbers. Quotient form of the rational numbers. There is other way we can write the rational numbers, that is the decimal form. That is the decimal form. So in decimal form there are, you can say, there are two types of numbers that can be rationals. One is the terminating type. One is the terminating type. ठीक है, so in terminating type the numbers will be, that means suppose for example we say 6.36. second example you can say -2.52, and another example you can take 36.6341. suppose these are three numbers. What we see in this, actually these are the rational numbers in which the decimal part, that means there is no, you can say there is no digit after 36. Likewise here there is no digit after 52. So 2 is the last digit and here 1 is the last digit. So that means we can say the digits are terminating after having few digits, and these few digits there is no limit of that. That few digit may be 1, 2, 10, 100 or so,
but these are terminating. Maybe it is terminating after thousands of digits, but that means these are terminating. Then these type of numbers are called terminating type of rational numbers, right? And means somewhere it will be terminating. Second is non-terminating. Non-terminating, but they are having the recurring repetition. But they are having the recurring repetition of the digits after decimal. ठीक है? Non-terminating, but recurring repetition of the you can say digits after decimal. So let us see example. Like you have 6.3333 and so on. These 3 repeats continuously up to infinity. So likewise there is suppose 73.363636 and so on. So this 36 repeats up to infinity. Likewise you can have 116.576. So this 576 repeats up to infinity. So such numbers in which the digits do not terminate after the decimals. ठीक है ना? तो the decimal digits do not terminate. Here also the decimal digits do not terminate, but instead there is one or more than one set of digits they are repeating. Like in this case 3 is repeating, 3 is repeating. In this case 36 is repeating. In this case 576 is repeating. ठीक है ना? तो such numbers where the digits do not terminate after the decimal, but there is one or more than one digit repeat continuously recurring. So such numbers are called non-terminating, you can say rational numbers. So here in short this can be written as 6.3 bar. This can be written as 73.36 bar. And this can be written as 116.576 bar. Clear? So such numbers are called non-terminating but recurring repetition of the digits after decimals. So there are 2 types of representation in decimal form, terminating and the non-terminating. तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स दिए गए हैं तो उनको आपस में कंपेयर करना है कि विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज लार्जर. उसको करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम दोनों कंसीडर करेंगे. जैसे कि मान लो नंबर आपका कोशेंट फॉर्म में है, यानी कि इफ दी रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन दी कोशेंट फॉर्म, तब उनको हमें कैसे कंपेयर करना है. कोशेंट फॉर्म में भी हम देख लेंगे कि देयर कैन बी 2-3 केसेस. फर्स्ट केस हम देखते हैं जिसमें कि हमारा जो है डिनोमिनेटर इज सेम. ठीक है. फर्स्ट केस व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर्स विच वी नीड टू कंपेयर इज सेम, यानी कि उन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है जिनको हमने कंपेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास केस है 5/7, दूसरा है 11/7 और तीसरा है मान लीजिए 18/7. यहाँ पे क्या है, इन 3 नंबर्स को कंपेयर करना है. तो इन 3 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इट्स वेरी सिंपल. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या करना है कि उसका न्यूमरेटर चेक करना है. तो वो नंबर सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है. तो इसके हम देखें तो डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ा कौन सा है 18, यानी कि दिस विल बी नंबर 1, यानी कि बिगेस्ट. उसके बाद 11, दिस विल बी नंबर 2 एंड दिस विल बी नंबर 3, यानी कि वी कैन राइट दैट 18/7 is bigger than 11/7 is bigger than 5/7. ठीक है. तो this is the comparison when the numbers of rational numbers are given in quotient form and their denominator is same. सेकेंड केस देखते हैं कंपैरिजन में इन क्वोशंट फॉर्म,
जब न्यूमरेटर सेम हो, यानी कि न्यूमरेटर सेम हो तब हमने, और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो ऑफ कोर्स, तो हमने कैसे कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास केस है कि 6/5, और सेकंड केस है सपोज आपके पास 6/11, और थर्ड केस है सपोज 6/2। ठीक है, तो सपोज दिस इज द केस। अब इसमें न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो अब हमने कंपेयर करना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम, तब कंपैरिजन में क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। दैट मीन्स इसमें डिनोमिनेटर किसका सबसे छोटा है, इसका छोटा है, तो ये सबसे बड़ा होगा, दिस विल बी एट नंबर 1, और उससे छोटा फिर इसका है तो दैट विल बी नंबर 2, और फिर ये आ जाएगा नंबर 3 पर। सो दैट मीन्स 6/2 is bigger than 6/5 and is bigger than 6/11. That means 6/11 is the smallest or 6/2 is the biggest. And as you know कि जो हमारा नंबर्स में इस तरीके से लिखेंगे, अगर नंबर लाइन पे अगर इनको देखना हो तो सबसे पहले कौन सा आएगा, लेफ्ट से राइट में 6/11, क्योंकि लेफ्ट में जो है स्मॉलर नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में, और राइट साइड में बिगर नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन में ये वाला पहले आएगा टू द लेफ्ट, फिर राइट में ये, और फिर सबसे बड़े वाला नंबर। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द रेशनल नंबर्स इन क्वोशिएंट फॉर्म व्हेन देयर न्यूमरेटर इज सेम। सो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स इन क्वोशिएंट फॉर्म का तीसरा केस हम लेते हैं व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। दैट मीन्स जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और रेशनल नंबर्स के दोनों ही अलग अलग हों। उस केस में सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज फर्स्ट नंबर इज 3.3 डिवाइडेड बाई 5, सेकेंड इज सपोज 7/8, और तीसरा नंबर ले लीजिए आप 11/3। सो दीज आर 3 नंबर्स जो कि आपने कंपेयर करने हैं। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द 3 या ऑल द नंबर्स विच यू नीड टू कंपेयर। जब इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करते हैं सभी नंबर्स को। लेकिन जब इसमें देखेंगे जो हमारे पास अभी गिवन नंबर्स हैं, इसमें कोई प्राइम फैक्टर्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स है ही नहीं, तो इस केस में एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम इज सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। तो इस केस में ये आ जाएगा 5 8 जा 40 into 3 120। सो एलसीएम इन दिस केस इज इक्वल टू 120, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इन सभी नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक हर एक को अपने अपने एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, सो दैट आपका डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए 120। तो फर्स्ट नंबर इज योर 3/5, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, 5 से जब 120 को हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। तो 24 से हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्स्ट नंबर से। अब पहले वाला देखिए डिनोमिनेटर तो 120 बन गया, और सेकंड केस में आपका है 7/8। तो इस 7/8 जो आपका, अब 8 से जब हम इस 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। थर्ड आपका केस है 11/3। तो 11/3 में 3 से जब हम 120 को डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। सो दैट मीन्स 40 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा तीसरे नंबर को। अब हम देखिए नेक्स्ट में आप इसको सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर फर्स्ट केस में आ जाएगा 72, नीचे तो हर एक में 120 ही आना है क्योंकि वैसे ही हमने नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सेकंड में आपका आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 120, और तीसरे में आपका आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 120। सो ये हमने बना लिया जो है आपका एक 3 नंबर्स जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग थे। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लेकर के हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया सच दैट द डिनोमिनेटर्स बिकम 120। तो अब हमारा इजी है, हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले केस में
कि अगर डिनोमिनेटर हमारे बराबर हों तो कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर है बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस केस में जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, सो दिस इज द बिगेस्ट, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। सो दैट मीन्स नाउ फॉर द गिवन नंबर्स ये जो आपका है दिस इज बिगर देन दिस इज बिगर देन दिस, दैट मीन्स 11/3 इज बिगर देन 7/8 which is bigger than 3/5. So this is how you can compare the rational numbers in quotient form when the both numerator and denominator are different. अब कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स में क्वोशिएंट फॉर्म में हमने देखा, 3 अलग अलग केसेस देखे हमने, वो कर लिया। अब सेकंड देखिए, अगर आपके नंबर्स जो हैं डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं रेशनल नंबर्स, तो फिर उनको कैसे कंपेयर करना है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल सपोज पहला नंबर आपका है 53.62, सेकंड नंबर है सपोज 53 या ले लीजिए आप 54.612, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, मान लीजिए इनको कंपेयर करना है हमने, दीज टू नंबर्स आर इन दी डेसिमल फॉर्म। इट्स वेरी इजी, बस करना क्या है हमने कि ये जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं हमने इनको डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करना है एंड कौन से डिजिट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यूज वाले डिजिट्स को आपस में कंपेयर करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर प्लेस वैल्यू। मैं एक एग्जांपल लेकर जैसे बताया, यहाँ पर 5 ये 53 है और ये 54 है, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये देखा कि ये 5 सेम प्लेस वैल्यू है इसका, दिस इज दी 1st प्लेस 10th प्लेस, ये भी 10th प्लेस पे है। तो इन दोनों को कंपेयर किया हमने, तो हमने देखा कि नंबर इज सेम। इफ नंबर इज सेम देन वी हैव टू प्रोसीड टू दी, दैट मीन्स द डिजिट एट द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, कंपेयर करते हुए राइट में जाना है टू द लोवेस्ट। तो ये हाईएस्ट वाला हमने देखा कि सेम है, तो वी हैव टू प्रोसीड देन टू द लोअर साइड। नेक्स्ट नंबर आपका 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका 4। तो ये 1st प्लेस पे 3 है, यहाँ पे 1st प्लेस पे 4 है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो आपका 4 इज जो है बिगर। तो वहां पे हमारा कंपैरिजन स्टॉप हो जाता है जब हमारा कहीं पर हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी डिजिट पे, कौन सी प्लेस वैल्यू पे कौन सा डिजिट छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर 4 इज बिगर, तो दैट्स व्हाई वी कैन से, और जिसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू पे हमें बिगर मिल जाता है, देन फर्दर कंपैरिजन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो वी कैन से दैट 54.612 इज बिगर देन 53.62, ठीक है। तो इस प्रकार से वी हैव कंपेयर्ड, जस्ट डिजिट वाइज डिजिट कंपेयर करना है, लेकिन डिजिट वाइज डिजिट कंपेयर करते हुए आपको देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू वाले डिजिट्स जो हैं वही कंपेयर हो रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। सपोज आपके पास नंबर है 102.32, ठीक है, और दूसरा नंबर है आपका 63.56, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 102, दिस इज एट दी 1st प्लेस, दिस इज एट 10th प्लेस एंड दिस इज एट 100th प्लेस। यहाँ पर डेसिमल से पहले, ठीक है, डेसिमल से पहले, एंड दिस इज एट 1st प्लेस एंड दिस इज एट 10th प्लेस, राइट। क्योंकि यहाँ पर 100th प्लेस पे वैल्यू नहीं है तो वी कैन कंसिडर इट एज 0, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो ट्रेलिंग और लीडिंग जीरोस हैं उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम उसको लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट इन द कैलकुलेशन। अब ये यहाँ पे हमने इसको सेम प्लेस वैल्यूज का बनाने के लिए यहाँ पे 100th प्लेस पे यहाँ पे नंबर नहीं था, डिजिट नहीं था, हमने इसको यहाँ पे 0 लगा दिया, राइट। तो अब यहाँ पर 100th प्लेस पे 1 है, पहले इसी को कंपेयर करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू साइड, और यहाँ पे 0 है, तो यहीं पे हमारा कंपैरिजन खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 100th प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 100th प्लेस पे 0 है। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज बिगर देन
that means 102.32 is bigger than 063.56. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आपके पास नंबर है 103.656, 103.656, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 103.607. ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं आपके. अब इनको कंपेयर करना है. अगेन देखिए, ये आपका वंस प्लेस, दिस इज 10th प्लेस और दिस इज 100th प्लेस. ऐसे यहाँ पर वंस प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस. डेसिमल के बाद ये आपको मालूम है, दिस इज कॉल्ड 10⁻⁻1th प्लेस, 10⁻⁻2 प्लेस, 10⁻⁻3 प्लेस. लाइकवाइज यहाँ पर 10⁻⁻1 प्लेस, 10⁻⁻2 प्लेस, 7 is at 10⁻⁻3 place. So we have to compare the corresponding place value digits. तो यहाँ पे 100 पे देखेंगे 1 1 बराबर है तो आगे बढ़ जाओ. यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू 10th पे 0, यहाँ पे 10th पे 0 बराबर है, आगे बढ़ जाओ. सो दिस इज वंस प्लेस पे 3, वंस प्लेस पे 3, ये भी इक्वल है. स्टिल वी हैव टू गो फर्दर फॉर कंपैरिजन. फिर नेक्स्ट यहाँ पे 10⁻⁻1 प्लेस पे 6 है, यहाँ भी 6 है, तो अभी भी हमारा कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ. नेक्स्ट यहाँ पर 10⁻⁻2 पे 5 है, यहाँ पे 10⁻⁻2 पे 0 है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट नंबर आ गया. एंड वी सी दैट 5 इज बिगर देन 0. सो 5 इज बिगर देन 0, तो हमारा कंपैरिजन खत्म हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है. तो वी कैन सिंपली से, क्योंकि 10⁻⁻2 प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, so that means this number is bigger than this. So this is how you can compare the rational numbers, whether they are in quotient form or in the rational form. So in the next video we'll cover few more you can say operations on the rational numbers. So keep watching this video and continue subscribing my channel Learning Mathematics with Dr. Harish. Thank you.